about Urdu literature, Hindi literature, and other South Asian studies topics in English. So that is kind of my academic background. And here I am speaking as the executive director of Samanvay, this cultural foundation that we have founded just recently with a group of people who have similar understanding and similar goals and similar mission and vision in terms of how we can promote Indian arts and literatures. So our primary goal is to preserve and promote Indian arts and literatures. But there are a lot of organizations, there are a lot of people who are doing the same thing. So I won't go into too much detail because you can find what we do, why we do it, how we are planning to do it on our website. But let me just highlight a few important points that that really define us, who we are. So the first thing is that our idea of art is very inclusive. So there are many organizations that focus on a particular art form, but we work with and promote various forms of art and arts and art genres, including music, dance, and theater, literature, our heritage of our textile heritage, and many more. So our idea of art is very inclusive and diverse. And the second point that I would like to highlight is that in order to preserve and promote art, usually what is done is to organize events. Something that we are also doing. For example, this event we have just organized that you are part of. But we believe that we cannot actually promote art without paying attention to audience. So we really are trying to make an effort to promote appreciation of art as well, not only creation of art. So we try to, our way to do is to contextualize different art forms and through their social, cultural context and literary, artistic context, and not only present art, but also talk about art. So that's why there will be a little bit of conversation in between our poetry recitation. So the goal is to inform our audience about the art in order to create active audience communities around the world that focusing on Indian art, obviously. The third is that we are very keen to work with youth groups. So we are, we have our own Samanvay Youth Forum, and we are inviting young people in this Samanvay space, this organization, to present their art, to talk about art. And that's the reason that we started our online event this past Tuesday in collaboration with a group of young people with the TGTF, the Good Talk Factory. And now we will start our poetry session with a young poet. So this event is actually a part of a 4-week series that we launched this week. And within that series, we are focusing on music and visual art, poetry, and a lot of other community building topics under the umbrella of talk events. So this poetry series, we are calling it Poetry Without Borders. So and we can talk about what it means later during the Q&A session, so that we have enough time to actually listen to poetry. And this particular event, for this particular event, the topic is cult poetry connecting with masters. So the idea is that we bring in some contemporary poets
particularly young poets, and we asked them to talk about a master or a poet who they really feel emotional and creative connection with, and then recite their own poem and connect their poem with the master's uh, poem or the cult figure's poem. So the term cult is be controversial. It can have some negative connotation sometimes. So that let me just very briefly say what we mean by cult. So for this session, a cult poet means a poet who suddenly or slowly became very, very popular and among poetry lovers and contemporary or young poets. So a poet that inspires emotional connection, devotion, and almost cult-like following is a cult poet for us. And his own poetry and poetry of his followers can be termed as cult poetry. And for today's event, we have 5 master poets that we are going to focus on. And everyone knows that these days, nobody can talk about Urdu poetry without talking about John Elia. So we have master poet John Elia and Riyasat Ali Asrar, a young poet, will be connecting with John's poetry. Soumya Venkateshan will be connecting with the poetry of Kamala Das. Sayyid Tamjeed Haider will be connecting with Faiz Ahmed Faiz. Mohit Ojhal will be connecting with Dushyant Kumar. And I myself, as a poet, have been very inspired by Fahmida Riaz. And I see some of my friends and some of my class fellows actually here. In the audience, they know how much I love Fahmida Riaz, and so I will be talking about Fahmida Riaz. So before taking too much time, let's go to our very first poet, Riyasat Ali Asrar. And if you allow me to speak in my Lucknowi, then I would say that अब हम दावते सुखन देते हैं जनाब रियासत हैदराबादी को कि वो अब कैमरा अपना ऑन करें, माइक्रोफोन ऑन करें और सामीईन से मुखातिब हमें ये बताएं कि वो किस शायर के दीवाने हैं और अपनी दीवानगी का सबूत देने के लिए उनकी भी नज्म पेश करें और अपनी भी नज्म पेश करें। लेकिन पहले आप अपने शायर की नज्म पेश करें, फिर मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए और उसके बाद आप अपनी नज्म पेश करेंगे। सो प्लीज वेलकम रियासत अली असरार। So Riyasat, go ahead. आदाब। I hope I'm हाँ audible. बस जी 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 हाँ, go ahead. हाजरीन तो नहीं है, नाजरीन और सामीन आदाब। हम हाजिर जिस हैं। आदाब बस जिस शायर की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उससे मैं समझता हूँ हर 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 ज़माने का शख्स उससे वाकिफ़ है। यानी उसके ज़माने के लोग, उसके बाद के ज़माने के लोग और इस ज़माने के लोग, यानी 3 आप कह सकते हैं 3 जनरेशन्स को उस शायर ने इंस्पायर किया है। वो जो जब यंग था तो अपने बुजुर्गों को इंस्पायर करता था, जब वो खुद बुजुर्ग हुआ तो अपने जवानों को इंस्पायर करता था, और अब जो 3rd जनरेशन है जो उसके जाने के बाद आई है उसको भी इंस्पायर करता है। जॉन एलिया काफ़ी मशहूर इसीलिए हैं, ज़्यादातर उनकी हरकतों की वजह से है, या the way he used to recite poetry, the way he used to dress, the way he used to act, उसकी वजह से वो आप कह सकते हैं इनफेमस है। लेकिन उनकी शायरी और उनकी नस्र निगारी पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। वो एक पक्के और एक सच्चे शायर थे। मैं सच्चा शायर इसीलिए कह रहा हूँ, पक्का शायर इसीलिए कह रहा हूँ कि वो फ़न के पक्के थे, यानी उनके फ़न में आपको कहीं झोल नहीं दिखेंगे। और सच्चा शायर इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो सोचते थे, वो जो समझते थे, जो महसूस करते थे, उसी को लिखते थे। यानी आवाम के लिए शायरी करना या जो है ना मशहूर होने के लिए शायरी करना या किसी और गैर से नहीं, बल्कि वो जो महसूस करते थे, वो जो सोचते थे। और उसमें कभी कभार आप देखेंगे कि खुदा के खिलाफ है, कभी समाज के खिलाफ है, कभी रस्म के खिलाफ है। यानी वो चीज़ें जो बहुत नॉर्मल है उस ज़माने में, द थिंग्स दैट आर वेरी नॉर्म, वो उनको तोड़ने की बातें कर रहे हैं, उनसे हटने की बातें कर रहे हैं, कुछ अजीब और गरीब और नए बातें कर रहे हैं। अलगर्ज उनकी जितनी बातें थी वो ज़्यादातर सच्ची बातें थी। मैं
हालांकि उनके अलावा कई ऐसे पोएट्स हैं जिससे मैं क्रिएटिवली कनेक्टेड महसूस करता हूँ। इमोशनली तो शायद ही मैं किसी पोएट से कनेक्शन महसूस करता हूँ, बट क्रिएटिवली मैं बहुत जैसे कि गालिब से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। उन्हीं में से कल्ट पोएट्स की जब हम बात करते हैं तो कई नाम आते हैं जो बॉलीवुड में फिल्म लिरिसिस्ट थे, उनके नाम आते हैं, और जो है ना इस जमाने में कई पोएट्स हैं। लेकिन जॉन एलिया की हालत ऐसी है कि वो उस दौर की आखिरी और नए दौर के पहले शायर, आप पहले शायरों में से उनको शुमार कर सकते हैं। खैर मैं 3 शेर उनकी एक गज़ल के और फिर एक उनकी गज़ल, यानी 3 शेर और एक गज़ल में पेश करता हूँ। इरशाद। एक एक गज़ल है जो, वैसे उनकी बहुत सी गज़लें हैं जो वो पढ़ते नहीं थे और जो छपी हुई है वो जो मेरी फेवरेट है। अब जो पढ़ते थे उनमें से कुछ कुछ ही पसंदीदा है, उनमें से मैं चुन के लाया हूँ कि मतलब देखिए, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, वाह। हालत हालत हाल हाल। के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। वाह और वाह। हाँ। एक ही हादसा तो है और वो ये है कि आज तक, ये मेरा हाँ। बहुत पसंदीदा शेर है। वाह। एक ही हादसा तो है और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। नहीं सुनेंगे। इनकी एक और गजल देखिए, कितनी आसान और कितनी इसमें अहम बातें हैं। आप देखें कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर ये दिन गुजर जाएंगे, जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। वाह और कितनी वाह। दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मर जाए। और ये खराबातियाने खिरत बाख्ता, ये हाय हाय। खराबातियाने खिरत बाख्ता, सुबह होते ही सब घर को सब काम पर जाएंगे। ये वाह खराबातियाने खिरत बाख्ता, सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। और है गनीमत के असरार हस्ती से हम, है गनीमत के असरार हस्ती से हम, बेखबर आए थे बेखबर जाएंगे। बहुत खूब। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा बहुत रहे खूब। हम तो मर जाएंगे। तो मर जाएंगे। तो असल में रियासत हम कोशिश कर रहे हैं इवन इस प्रोग्राम के जरिए, जो हमारी टैग लाइन है हमारे लोगों के साथ जो जाती है कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट एंड सोल, तो हम आर्ट की तरफ रुजू कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ जिंदा नहीं रहें, है ना। और जैसे जॉन एलिया को ही बेसिकली हम उन्हीं की बात सुन रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। तो हम सिर्फ जिंदा ना रहें, हम आर्ट के साथ जिंदा रहें, अपनी रूह को जिंदा रख कर जिंदा रहें। और ये मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, ये मेरे सिलेबस में शामिल है ये गजल। तो शुक्रिया बहुत। और अब जरा आप अपनी एक दीवानगी का सबूत दीजिए। आपने अभी तो जॉन की दीवानगी का सबूत दिया। देखिए मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग में लिखने के लिए कोशिश करते रहता हूँ। एक रंग जिसमें मैंने बहुत कम लिखा है वो जॉन का ही रंग है। हालांकि मैं बहुत एडमायर करता हूँ इस शायर को, लेकिन ऐसा होता है कि आप जिससे इंस्पायर होते हैं, जिसको एडमायर करते हैं, फिर उसकी तरह लिखने के लिए आप झिझकते हैं। तो एक गज़ल मैंने जो है ना जॉन की बरसी पर लिखी थी। जॉन के 2 शेर हैं कि बेकरारी सी बेकरारी है, वाह वस्ल है और फिराक तारी है, वाह जो वाह वाह। गुजारी न जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। क्या इस बात क्या बात। जमीन पे मैंने कोशिश की थी बहुत पहले। पुरानी गजल है, देखिए कि मांग भर दी तेरी सितारों से, कहकशां अब तलक कुंवारी है, वाह। मेरी आंखें भी शब गजीदा हैं, शब मेरी गजीदा, क्या आंखें भी अच्छी शब तरकीब। गजीदा हैं, शब दिन में गुजीदा है, तारीक क्या रात बात। तारीक है, फिर से दिन में कहिए, फिर से तारीक रात। मुकर्रर। रियासत मुकर्रर इरशाद। मेरी आंखें भी शब गजीदा हैं, दिन में तारीक रात तारी है, और पेचो खम, ये शेर बतौर खास, पेचो खम राहे जिंदगी की देख, पेचो खम राहे जिंदगी की देख,
हमने जुल्फे गजल संवारी है, हमने जुल्फे वाह गजल वाह संवारी है। और ये जॉन की नजर के एक ही रात में फकत हमने, एक ही रात में फकत हमने जॉन सी जिंदगी गुजारी है। वाह 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 जब वाह। से वाह क्या ये बात, क्या बात। जो गुजारी ये ना जा बड़ा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो एक ही रात में फकत हमने जौन सी जिंदगी गुजारी है। और जब से तस्कीन पा गए असरार, जब से तस्कीन पा गए असरार, बेकरारी सी बेकरारी है। वाह 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 वाह। और ये जो वाह आपने वाह शेर है कि एक ही रात में आपने जो है वो जॉन की सी जी जिंदगी गुजारी है, वो इवन एक रात में जॉन की सी जिंदगी गुजारने का दावा जो है वो बहुत बड़ा दावा है। जी, बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा इस है। पे कई उसकी दलील सवाल भी उठे थे। होगी। हाँ, दलील, इसके हाँ दलील जायज और है, सबूत तो आपको बाद में पेश करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन और बहुत हाँ, खूब बहुत और खूब। बहुत खूब। तो हम जो बहुत हैं बहुत फिर बढ़िया। लौटेंगे रियासत की तरफ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपनी शेरी नशिस्त में, और हम सौम्या वेंकटेशन, एक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मैच्योर young poet, Soumya Venkatesan. She will talk about Kamala Das, one of her favorite masters, and then recite a poetry by Kamala Das, and then will connect her own poem with Kamala Das's poetry, which is just like what Riyasat did, is a very, very huge effort and a lot of pressure. And I understand what all we are doing is kind of making ourselves fools, but bravo, shabash for your courage. So Soumya, go ahead. Hello everyone. Thanks, Fazia. So Kamala Das who's also called as Madhavi Kutti and Kamala Suraya in some circles. She wrote in both English and Malayalam, but predominantly in English. And she was in fact called the mother of modern English Indian poetry. Very, very radical poet. She came to prominence in around 60s in Calcutta, because that's when the literary circles in Calcutta were exploding and sort of brewing with a lot of new talent. So I'll just read this one paragraph first to sort of introduce what kind of a character she was. Some people told me that writing an autobiography like this, with absolute honesty, keeping nothing to oneself, is like doing a striptease. True, maybe. I will firstly strip myself of clothes and ornaments. Then I intend to peel off this light brown skin and shatter my bones. At last, I hope you will be able to see my homeless, orphan, intensely beautiful soul deep within the bone, deep down under, beneath even the marrow in a fourth dimension. So Kamala Das became very famous because of the feminist writing she did, because of her columns she wrote about women's issues and love and desire from a woman's perspective. However, people often gloss over the fact that she wrote about a lot of other things. She's written about nostalgia, she's written about the pain of old age. And for me, more than the confessional style in which she writes, which has earned her, earned her a comparison with Sylvia Plath or with Anne Sexton. More than that, for me, when I read through her works, there is one feeling that always pervades, and it is this search of a search of an identity. Through all her poems, you'll see her sort of navigating two lenses, two frameworks. One framework is her identity as viewed from another lens, from the lens of someone outside her, that she does not belong to herself, but belongs to someone else who is defining her. And this other turmoil and a sort of violence also, which is an attempt to
assert herself and identify herself as per her own means. So that's really what I identify with. So I'm going to read something called Forest Fire by her, which sort of describes whatever I was yammering about, and also proves that while she writes about the individual experience, there is also a universality which she conveys. Forest fires. Of late, I have begun to feel a hunger, to take in with greed like a forest fire that consumes, and with each killing gains a wilder, brighter charm, all that comes my way. Bald child in open pram, you think I only look, and you too, slim lovers behind the tree, and you, old man with paper in your hand and sunlight in your hair. My eyes lick at you like flames, my nerves consume. And when I finish with you in the pram, near the tree and on the park bench, I spit out small heaps of ash, nothing else. But in me, the sights and smells and sounds shall thrive and go on and on and on. In me shall sleep the baby that sat in prams, and sleep and wake and smile its toothless smile. In me shall walk the lovers hand in hand, and in me, where else? The old shall sit and feel the touch of sun. In me, the street lamps shall glimmer, the cabaret girls cavort, the wedding drums resound, the eunuchs swirl colored skirts and sing sad songs of love, the wounded moan, and in me, the dying mother with hopeful eyes shall gaze around, seeking her child, now grown and gone away to other towns, other arms. Wow. So that Oh, was so Forest beautiful, Fire. so touching and heart-wrenching too. Yeah. Beautiful. Yes. Very nice. I want to read another very small poem, which again sort of talks about that othering, the lens which a lot of us feel, and most, especially women, of not being ourselves, but being someone else. It's called Someone Else's Song. I am a million people talking all at once, with voices raised in clamor like maids at village bells. I am a million deaths, box clustered, each a drying seed, someday to be shed, to grow for someone else, a memory. I am a million births, flushed with triumphant blood, each a growing thing that thrusts its long nailed hands to scar the hollow air. I am a million silences, strung like crystal beads onto someone else's song. Yeah, Beautiful. someone else's song. Wow. Beautiful. Thank you. And yeah, so so do you want to because when Soumya, you and I talked about some master poets, and we were saying that we don't think of women poets, but we think of master poets, Yeah, and we were that's complaining true. about this in our own meetings. So so why Kamala Das? Because you mentioned many other Telugu poet, Tamil poet, and by the way, all of you who are out there, as I said, that this is poetry without borders. So we will be reciting poetry in all Indian languages, inviting poets from other so-called regional languages. So but today Soumya chose Kamala Das, even though she shared about other poets as well. So why Kamala Das? Okay, so first So of all, I'm talking about personal of, connection. You talked about Kamala Das, yeah. As a poet, and her importance in terms of in the history of English poetry in India, and particularly women's poetry in India. But your own personal connection, emotional. First of all, to the question of why we don't think of women poets as master poets, is that
Uh, I mean, all cult poets are controversial, but especially during that time, if a woman becomes famous, she's instantly extremely controversial because she's writing about ideas that uh, the reason she becomes famous is because she's writing about ideas that are not to be spoken in civil society. It's very hard to navigate that line where you are not deemed obscene and and be famous. So this is true for both genders, but especially for women, that navigating that line becomes difficult. For me, yeah. So as I was talking about, for me, Kamala Das creatively is a very prominent figure because of that search for identity, which I was talking about. I mean, the reason we write, the things we write, things we do, the clothes we wear, are all an effort to define ourselves the way we would want to define us. And that is a very, and for us poets, we do it through what we write. And that is very strong. That's a very strong voice. That assertion is very strong in Kamala Das. That there is turmoil in, you know, what am I, who am I, and there is an assertion that this is who I am. So that assertive voice and that exploration of the identity through multiple layers, through multiple roles, is what really strikes me. It is what really inspires me creatively about Kamala Das's works. So would you like to recite, you know, a poem, your poem, and before we move on to another? So this is a slightly longer poem, so I don't know if you want to move on and come back, or 3 to 4 minutes. 2 to 3 it's minutes. Good. You go ahead. Okay. Because we want to hear your so this is a poem that again explores identity through multiple layers and how we define ourselves through life as we go through life. So it's called Birthdays. I was born 25 years ago. My mother's belly was cut open and I inhaled the world. Its moist air, its damp earth, its creatures distorting the space as they moved in sharp angles. Its horizon humming with possibilities. It was all too much to take in, I cried. I was born yesterday as a fiber of light, a spark, a crackle of neurons in the head of a stranger. A miniature me, my eyes, my skin, my universe, birthed and captured in a mere glance. I stole their laughter in exchange. I was born 1,000 years ago, when screams were muffled from a woman's body before they could find a voice. Now, when I turn a corner to face a lonely street in the night, a millennium's memory of fear rises like bile, grips my heart, stalls my feet that want to stride on. I hesitate. I was born 4 billion years ago, as were you, lover, enemy, forgotten friend, your neighbor and their dog, and the manual scavenger I beat to death for water. Water, born when I was, the water-born lily pad, and the frog that hopped on it to hunt the dragonfly, and the hunted's wings that crumble as glass turns to sand. Sand, born when I was, the sandstorm and the hurricane, and the whirling particles that waltz in tight circles, all born when I was. Not I, not particles, not hurricane, sandstorm, sand or glass, not wings or frog or lily pad, not water or despair or dirt, not dog or neighbor or you, my friend, not lover, not enemy, not born, not dead, all there, all then, the singularity we once were.
I was born 3 minutes ago. I stood up straight, made fire, made love and civilization, made art, hatred, violence, made blood paint the sky, made language dance and horsehair sing, made lights speak with our instruments, made myself wait now, hunched on the brink of the end. Beautiful. Wow, बहुत खूब सोमिया. बहुत Thank बहुत you. अच्छा. Thank you so It much. was beautiful. Very nice. Very nice. Very nice. So now we are going to, according to this flyer, probably, to Syed Tamjeed Haider. And so Tamjeed, जी 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 आप अपना तारुफ कराएं और कुछ बताएं कि आप क्यों फैज अहमद फैज से मुतासिर हैं और अपनी नज्म से जी हमें बिल्कुल नवाजें. बिल्कुल जी, मैं सैयद तमजीद हैदर हूँ और बहुत एक अरसे से यानी तकरीबन 15-16 साल से मैं उर्दू शायरी कर रहा हूँ और उर्दू इसलिए कि मुझे उर्दू से अपनापन लगता है, अपने हिंदुस्तान की खाक की बू आती है मुझे। तो उर्दू इस वजह से मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उर्दू शायरी करता हूँ और मैं कई शोरा से मुतासिर हुआ हूँ, हालाँकि मैंने किसी की तक़लीद नहीं की, लेकिन कई शोरा से मुतासिर हुआ हूँ और उनमें से सबसे पहले मीर, फिर गालिब, फिर उसके बाद इक़बाल और उसी के साथ-साथ जो कंटेम्परेरी में इस सदी के जो मैं मानता हूँ 2 सबसे बड़े उर्दू शोरा थे। एक तो अल्लामा इक़बाल और दूसरे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। तो मैंने बहुत पढ़ा है, हालाँकि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को मैंने बहुत बाद में जाना, लेकिन जब जाना तो मैंने बहुत सही से जाना। और मुझे फ़ैज़ की ग़ज़लों से ज़्यादा उनकी नज़में बहुत पसंद आती हैं। और चूँकि फ़ैज़ एक तरक्की पसंद शायर थे, प्रोग्रेसिव राइटर थे, तो और मुझे भी चूँकि वही नहज और वही अंदाज़ पसंद आता है, तो इस वजह से भी मैं फ़ैज़ से बहुत लगाव रखता हूँ और बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मुझे जैसा कि मैंने कहा कि फ़ैज़ की नज़मों से मुझे बहुत लगाव है, तो मैं फ़ैज़ की एक नज़्म यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। और जी, वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है कि एक उसका छोटा-सा एक वाक़या भी है कि फ़ैज़ जवानी के आलम में एक लड़की से मोहब्बत करते थे, जो सियालकोट में उनके घर के पास रहती थी। एक खूबसूरत लड़की थी, तो उनसे दूर-दूर ही मोहब्बत किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक वो लड़की गायब हो गई। तो जैसे ही वो लड़की गायब हो गई, तो उन्हें फिर हैरत हुई, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो भी अपने कामों में लग गए। एक अरसा गुज़रा, फ़ैज़ की भी शादी हो गई थी और जब उसी घर में सियालकोट में जब वापस आए और उन्होंने तब उन्हें पता चला कि वो लड़की वापस आ गई, उसकी शादी हो गई है, वो शौहर के साथ रह रही है। तो उन्होंने चाहा कि उससे जाके मुलाकात करें। जब उन्होंने जाके मुलाकात किया तो उस लड़की चूँकि उनको उस लड़की को मालूम नहीं था, तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि वो मशहूर हो गए थे और ये कहा कि मेरे शौहर आपके बहुत बहुत फ़ैन हैं और बहुत खूबसूरत हैं मेरे शौहर। तो फ़ैज़ ने ये नज़्म उसके बाद लिखी। इस नज़्म का उन्वान दिया रक़ीब से। वाह, वो रक़ीब बहुत पसंदीदा. एक राइवल, कॉम्पिटिटर हाँ. को कहते हैं रक़ीब। वाह. तो इसका उन्वान है रक़ीब से, मैं ये नज़्म पेश कर रहा हूँ, बहुत और खूबसूरत नज़्म है। बहुत कम कोई आशिक होगा जो एक लव पोम जैसी पोम, यानी एक बहुत मोहब्बतनामा जैसे रकीब के नाम लिखे. तो इरशाद. जी, जी, जी। जी, मैं पेश कर रहा हूँ। आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफ़साना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुज़रे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है।
तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजिज़ी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे दर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। और इसका आखिरी बंद है कि जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। बहुत खूब तमजीद। ये मेरी भी फैज की पसंदीदा नज़मों में से एक नज़म है। तो बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया इनायत करने के लिए, और अपनी भी एक नज़म इनायत कीजिए। जी, मैं अपनी एक गज़ल यहाँ पर पेश करूँगा। हालांकि कुछ अहबाब सुन चुके हैं, लेकिन आपके लिए ताज़ा होगी, मैं पेश कर रहा हूँ। छोटी बहर में है कि दर्द दिल को तर्जुमानी चाहिए, दर्द दिल को दर्द तर्जुमानी दिल को चाहिए। तर्जुमानी चाहिए, दर ज़बाने बेज़बानी चाहिए। वाह वाह। और ख्वाब का क्या है वो खुद आ जाएगा, ख्वाब का क्या है वो खुद आ वो खुद जाएगा, मुझको पहले नींद आनी चाहिए। हाँ, बहुत खूब। क्या बात क्या बात क्या क्या बात। बात। ख्वाब का क्या है वो खुद आ जाएगा, मुझको पहले नींद आनी नींद आनी चाहिए। चाहिए। एक खुदा को छोड़कर हर शख्स को, एक खुदा को छोड़कर हर शख्स को मेरे होने की निशानी चाहिए, मेरे होने की निशानी चाहिए। और ये शेर के दुश्मनों को वो समझते ही नहीं, दुश्मनों को वो समझते ही नहीं, दोस्तों को शर्म आनी चाहिए, दोस्तों को शर्म आनी चाहिए। और जो ज़मी बर्बाद करके आए हैं, जो ज़मी बर्बाद करके आए हैं, उनको जन्नत आसमानी चाहिए। बहुत खूब। जो ज़मी बर्बाद करके बर्बाद आए करके हैं, उनको जन्नत आसमानी चाहिए। बहुत और ये शेर एनवायरमेंटलिस्ट के शेर भी है। वाकया, बहुत शुक्रिया, कि वाकया उनको समझ आता नहीं, वाकया उनको समझ आता नहीं, मेरे बच्चों को कहानी चाहिए, मेरे बच्चों को कहानी चाहिए। वाकया उनको समझ आता नहीं, मेरे बच्चों को कहानी चाहिए। और खुल्द, खुल्द यानी जन्नत, शुक्रिया, कि खुल्द में जाएंगे इतना कह दिया, खुल्द में जाएंगे इतना कह दिया, बात तो पूरी बतानी चाहिए, बात तो पूरी बतानी चाहिए। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि पीर कहते हैं बूढ़े को कि पीर मैं तमजीद हो सकता नहीं, पीर मैं तमजीद हो सकता नहीं, मौत को मेरी जवानी चाहिए, वाह 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 वाह। मौत को मेरी जवानी चाहिए। शुक्रिया। बहुत खूब तमजीद। तो हम अपने तमाम शोरा की तरफ वापस लौटेंगे। We will get back to our poets, बहुत ही but बात। let's just now move to our next poet, Mohit, pen name तखल्लुस ओझल। So मोहित साहब, अब आप कैमरे पर ऑलरेडी हैं और अपनी कविता, शुक्रिया, अपनी नज़्म पेश करें। हाँ तो बात शुरू पहले तो हुई थी। बताएं कि हाँ, तो कल आपके मास्टर पोएट। आज के लिए मैंने दुष्यंत कुमार को चुना।
हिंदी शायरी में हिंदी में मतलब हिंदी कविता बहुत होती है, हिंदी शायरी एक तरह से दुष्यंत in a way was one of the first ones to do it. खासियत उनकी एक और ये थी कि जब दुष्यंत ने लिखना शुरू किया तो उस समय काफी हिंदी पोएट्स थे, लेकिन काफी टफ संस्कृत निष्ठ भाषा में, जैसे स्कूलों में जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है ना कि ये हिंदी सरकारी है, हिंदी, हाँ सरकारी हिंदी, उस तरह से लिखा जाता था। और ऐसा नहीं कि बुरा लिखा जाता था, लेकिन मतलब that was a standard that was there and दुष्यंत कभी उस तरह से लिख नहीं सके। मुझे नहीं लगता कि लिख नहीं सके इन द सेंस कि वो चाहते तो लिख नहीं सकते थे, लेकिन वो शायद लिखना ही नहीं चाहते थे। वैसे वो आम आदमी से कनेक्ट करते थे, वो आम आदमी की खींच, आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन, और बड़े यंग पोएट हैं वो। ही वॉज बॉर्न इन 1933, ही डाइड एट द एज ऑफ 42 1975 में। तो इन ए वे जब आप उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपको एक यंग यूथ का जो एक फ्रस्ट्रेशन होता है सिस्टम के लिए कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो वो जो एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है, और एक यूथ का फ्रस्ट्रेशन होना भी चाहिए। मुझसे किसी ने कभी कहा था, और ये शायद पुराना एक कोट है कि if you are not a communist when you are young, you don't have a heart and if you are not a capitalist when you are older, you don't have a head. तो मुझे नहीं पता दोनों के बारे में, लेकिन पहला वाला पार्ट दुष्यंत डेफिनेटली एग्जेम्पलीफाई करते हैं कि वो ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट थे, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन था सिस्टम को लेके, और वो फ्रस्ट्रेशन उनकी बहुत सारी शायरी में डेमोन्स्ट्रेट होता है। मजे की बात ये कि while he was writing this kind of aggressive anti-establishment poetry in very very simple language, जिसको लोग मतलब सुन के immediately याद रख सकें, he was a government servant. He was employed with All India Radio and that did not come in the way. तो हम मतलब जब ट्रू करेज की बात करते हैं तो कभी कभी ट्रू करेज इस तरह से भी होता है कि आप अपनी नौकरी है आपकी और आपने घर चलाना है, आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जमीन जायदाद है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। तो मैंने आज के लिए वैसे तो उनकी 3-4 गजलें मेरी काफी फेवरेट हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज जो एक गजल सुनाऊंगा उनकी, वो सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो थोड़ी इट्स एन एक्सॉर्टेशन, इट टेल्स यू टू डू थिंग्स। तो अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर, और पीर हिंदी में पीड़ा, इट पेन, अनलाइक उर्दू जहाँ पे पीर तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। और ये सब मेरा पसंदीदा शेर है, और ये बहुत सारे लोगों का पसंदीदा शेर है, मुझे पता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर पे जब आते हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जलनी चाहिए। तो ये जो एक तरीका है, ये एक जो नजरिया है और ये एक जो स्टाइल है दुष्यंत का, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी कॉन्शियसली दुष्यंत को एमुलेट किया फनीली, लेकिन मैं अभी अपनी कुछ पुरानी गजलें पलट रहा था और and I realized that there was a period in which I wrote things which kind of are inspired by him. अब मतलब ये कहना कि मैं उनको एमुलेट कर रहा था बड़ा गलत होगा, क्योंकि वो किसी मुकाम पे थे और मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो लेकिन जैसे आपको एक छाया दिखाई देती है, एटलीस्ट मुझे दिखाई देता है। तो मेरी अपनी एक गजल की सारा जमाना एक खौफ वहशत में है, सारा जमाना एक खौफ वहशत में, सारा जमाना एक खौफ वहशत में है, हर शख्स किसी बेनाम सी दहशत में है, और साकी तेरी मैं है बहुत मशहूर मगर तू, साकी तेरी मैं है बहुत मशहूर मगर तू, पूछ कभी शाह से जो नशा ताकत में है, और चाहते तो मोहब्बत से भी काम ले सकते थे, चाहते तो मोहब्बत से भी काम ले सकते थे, मगर जुल्म करना आपकी फितरत में है, और तलवार खींचने से पहले करे है सलाम वो, तलवार खींचने से पहले करे है सलाम वो, यानी मुझे अब डर उसकी कुर्बत में है, और उसने कहा था आग लगेगी आग लगी, उसने कहा था आग लगेगी आग लगी, मैं कैसे मान लूं खोट उसकी नीयत में है, और आखिरी शेर की मैं खोज रहा हूँ कोई हक परस्त इंसान, मैं खोज रहा हूँ कोई हक परस्त इंसान, ये नाकाम तलाश अब मेरी किस्मत में है, सारा जमाना एक खौफ दहशत में है, हर शख्स किसी बेनाम दहशत में है। मोहित, वो जो नाकाम तलाश है ना, वो सबकी किस्मत में है। तो ये बात है, तो ये नाकाम तलाश है, वो सबकी किस्मत है। बहुत शुक्रिया। हम हाँ, सॉरी, मैं बस रह नहीं पाई कि मुझे याद आया कि नाकाम तलाश है वो बड़ी जो है वो अहम तलाश है। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से आगे अगर वक्त रहा तो हम दुष्यंत के बारे में और बात करेंगे। मेरे पास हाँ। तो मतलब उनकी तो उनका, लेकिन जाने से पहले मैं उनका एक शेर और सुनाना चाहूंगा कि जी। और जैसे फ्रस्ट्रेशन की बात होती है ना, तो वो थोड़ा सार्केस्टिक होके भी कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुंझुने हैं। फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला शेर है। और he doesn't let up. I mean that's the beauty of the man. He doesn't let up. वो अलग अलग तरह से अपनी बात कहते हैं और उसी बेबाकी से और उसी साफ गोई से कहते हैं और उतनी ही सिंपल भाषा में बोलते हैं। तो उनके वैसे कुछ शेर हैं जो खासे कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो उनके सिंपल शेर हैं वो कनेक्ट करते हैं, वो रहते हैं। इसीलिए वो कल्ट पोएट की तरह की हैसियत उनको मिली। तो वो कनेक्ट करने की जो सलाहियत है, वो सबसे अहम सलाहियतों में से एक है, जो एक शायर को, एक पोएट को कल्ट पोएट बनाती है। तो बहुत शुक्रिया मोहित, और हम वापस अपने शोरा की तरफ जाएंगे। We'll get back to our poets, and then I know that we have some poets in the audience as well who might want to share their poems. So if you guys, all of you, allow me, then I can talk about Fehmida Riaz, who I have been inspired by. Yes, and please. Yeah, so thank you. So when I was growing up and I was in college, so within Urdu poetry circles, and particularly among young female poetry lovers, there were 4 names. And these were Kishwar Nahid,
एक किश्वर नाहीद का नाम बहुत होता था, फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर और इशरत आफरीन। तो उन चारों की अपनी अपनी खूबियां हैं। वो चार जो लोग हैं उन्होंने उन जो एक तरह से फॉर्मिंग ईयर्स मेरे रहे हैं उन पर मुझ पर काफी असर डाला है। तो मुश्किल है ये कहना कि मतलब मैं उन चारों की शायरी की जो गूंज है वो अपने जहन में महसूस करती हूँ। जरूरी नहीं कि अपनी शायरी में महसूस करती हूँ, लेकिन आपकी शायरी आपके जहन से वाबस्ता होती है। तो ये सब लोग आपने देखा कि थोड़ी हम में झिझक है कि हम ये कैसे कह दें कि नहीं हम इस शायर से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम होमवर्क की तरह उनकी तरह शायरी करने की कोशिश करें। तो फहमीदा रियाज क्यों, जब ये दूसरे लोग हैं? क्योंकि ज्यादातर जो खवातीन शायर थी या जो शायरात थी जब हमारे जमाने में, तो so they were all writing feminist poetry in their own ways, but and they were all kind of expressing womanhood and their own experience, gendered experience or experiences in their own ways. And for example, Kishwar Nahid has this, बगावत की जो आवाज जितनी बुलंद किशोर नाहिद के यहाँ है वो कहीं और नहीं है। उनकी नज्म हम गुनहगार औरतें एक टाइटल बन गई है पूरी साउथ एशियन फेमिनिस्ट पोइट्री के लिए। परवीन शाकिर, जो कि अगर आजकल चूंकि वो स्कॉलरली सर्कल्स में उनके बारे में बात नहीं होती तो लोग इस बात को 25 साल की उम्र के बाद छुपाने लगते हैं कि उनको कभी परवीन शाकिर पसंद थी, लेकिन हर 16 साल की लड़की को परवीन शाकिर पसंद होती है और मुझे भी पसंद थी। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है। तो हम कहते हैं इट इज ऑल अबाउट ओनिंग आवरसेल्व्स। सो आई एम ओनिंग दैट आई लव्ड परवीन शाकिर। इन फैक्ट आई रोट अ पेपर defining defining feminism in the case of Parveen Shakir, a conference paper. और इशरत आफरीन और बिलवेड इशरत आपा, आई नो हर पर्सनली। सो इशरत आपा की जो नज्म है, उनकी नज्में हैं, उनकी शायरी है, उसमें एक तरह से क्लेमिंग ट्रेडिशन is something that is unique in comparison to other poets, at least in my view. But then why Fehmida Riaz? I think in that atmosphere when feminist poetry, feminist voice is supposed to be only angry, right? Or either you can be feminine, even I mean, of course, like, I don't accept these categories, but you can be feminine and then that means being Parveen Shakir, even though Parveen Shakir wrote a lot of feminist poems. Or you can be feminist like Kishwar Nahid and then go and aap jaakar elan kijiye ki hum gunehgar auratein hain. But I did not like this idea of hum gunehgar auratein. I mean, I liked the idea, but I didn't want to box myself in that, like as a woman as well. So I learned from Fehmida Riaz's poetry to be this woman that I believe I am. So I want, this idea of a woman who boldly does everything, boldly claims, boldly recognizes her intellectual ability and is comfortable embracing her emotional vulnerability. And at the same time, she is comfortable and she's comfortable claiming her sexuality as well. So as Soumya was saying, that when you claim sexuality, it's kind of a slippery slope. But she did it, and she did with aesthetics, she did it with beauty. So अगर उर्दू में कहें तो फहमीदा रियाज ने जिस तरह अपना रिश्ता बैक वक्त चाहत और बगावत से बाकायदा बरकरार रखा और उस बैलेंस को एक वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग की तरह उन्होंने वो कायम रखा और एक तरह से उससे अपनी शायरी पैदा की, मुझे लगता है वो उनकी जो खूबी है, that is something that I feel personally as a woman connected with and as a poet connected with. And she was, of course, very controversial. She was a Marxist during Ziaul Haq's time. She was in exile. She actually found asylum in India. She lived in Delhi for many years and wrote poetry there. And she is connected with the Indo-Persian culture. And, she has poems like highly, where she presents a woman, a persona or portrait of a woman, you see as if it is the portrait is coming out of some ancient Sanskrit
epics. So I liked all that, but I'm deliberately going to recite a poem, Zabanon Ka Bosa, which became very controversial, or very highly sensual poem. Zabanon Ka Bosa, Bosa is kiss, and we all know Zaban. So Zabanon Ka Bosa is kiss of tongues. And of course, you know, men write about women, they describe female bodies, they present women and describe their emotions, and they are considered artists. And when a woman, as Soumya pointed out, when we do that, then a woman herself does it, then she is a slut, and she is her work is doing striptease. But so kind of to assert reassert what Fahmida Riaz asserted through her poetry, I'm going to recite Zabanon Ka Bosa. ज़बानों के रस में ये कैसी महक है, ज़बानों के रस में ये कैसी महक है, ये बोसा कि जिससे मोहब्बत की सहबा की उड़ती है खुशबू, ये बोसा कि जिससे मोहब्बत की सहबा की उड़ती है खुशबू, ये बदमस्त खुशबू जो गहरा गुनूदा नशा ला रही है, ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा है, मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है, मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है, तुम अपनी ज़बां मेरे मुंह में रखे, तुम अपनी ज़बां मेरे मुंह में रखे, जैसे पाताल से मेरी जान खींचते हो, ये भीगा हुआ गर्मो तारीक बोसा, ये भीगा हुआ गर्मो तारीक बोसा, अमावस की काली बरसती हुई रात जैसे उमड़ती चली आ रही है, अमावस की काली बरसती हुई रात जैसे उमड़ती चली आ रही है, कहीं कोई साअत अजल से रमीदा, कहीं कोई साअत अजल से रमीदा मेरी रूह के दश्त में उड़ रही थी, वो साअत करींतर चली आ रही है, वो साअत करींतर चली आ रही है, मुझे ऐसा लगता है तारीकियों के लरजते हुए पुल को मैं पार करती चली जा रही हूँ, ये पुल खत्म होने को है, ये पुल खत्म होने को है, और अब इसके आगे कहीं रोशनी है। वाह वाह, शुक्रिया. So that was Fahmida Riaz. वाह, and no one can do what she did with bringing spirituality, sexuality, and baghabat, rebellion, spirituality, sexuality, all together in this poem. And this poem was considered obscene, but if you look at it, she is saying, मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है. When a man connects sexuality with spirituality, he becomes Guru Rajneesh and Osho, and people follow him. And when a woman talks about it, then we just become uncomfortable. So, and again, I will remind what Soumya said, what I said, what we all have been saying, that we have every right to express our sexuality, but once we express our sexuality, it doesn't mean that you are supposed to box us into only that box. So she wrote many great rebellious poems, political poems, and I will get to I would like to recite one such poem to prove my point. And particularly this poem as a young girl, I liked, because this poem gave us hope. So it was not just about, things are bad, but it showed us things can be better. Ek ladki se, to a girl. So this is again Fahmida Riaz. संग दिल रिवाजों की ये इमारतें कोहना, अपने आप पर नादिम अपने बोझ से लर्ज़ां, खुद जिसका जर्रा जर्रा है खुद शिकस्तगी सामा, सब खमीदा दीवारें, सब झुकी हुई कड़ियां,
संग दिल रिवाजों के खस्ताहाल जिंदा में, एक सदाए मस्ताना, एक रक्स रिंदाना, ये इमारते कोहना टूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी छूट भी तो छूट भी तो सकती है. सकती है. So this वाह hope that वाह ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है had a I really like this particular line because एक तो ये कि this reminds us that even if you are a princess but you know you might still be imprisoned in a palace. So being princess, being, you know, having a happy life doesn't mean that you are free. As a woman, I learned that from this, and also this gave us the hope that, you know, Asir Shehzadi chhoot bhi to sakti hai. The princess can actually get free. So now I'm going to recite my own poem, and this is again it's that Zabanu Ka Bosa kind of poem, and it was once when it was published. A very recognized translator thought that this poem, you know, should have been translated into English, and he did. And then, but then I have written many other political poems, emotional poems, all sorts of poems, and then my other poems did not get this kind of interest where a translator would come and voluntarily translates my poem. So that shows that yes, we get more attention and we get more criticism by some of the, you know, by writing the kind of poems that Fahmida Riaz did. Okay, so ये जो नज़म है उर्दू में है और इसका उन्वान है मरहले, phases. So here it goes. न इतनी शिद्दत से मुझको भींचो, न इतनी शिद्दत से मुझको भींचो, जरा रुको और ये खार खींचो, जो जाने कब से मेरी हथेली में चुभ रहा है. ये मेरी गर्दन के नीचे देखो, ये मेरी गर्दन के नीचे देखो, तुम्हारे होठों के जाविये हैं, हदे नजर तक तुम्हारी बाहों के दायरे हैं. ये मेरे होठों की सुर्खियों में लहू तुम्हारा चमक रहा है, तुम्हारे होठों की प्यास जैसे मेरे सीने में भर गई है, मेरी ज़बां पर ज़बां के बोसे का जायका है पासदारी पे नाज जिसको, है पासदारी पे नाज जिसको, वो ज़हन मगरूर सो रहा है, मोहब्बतों की सियाह बारिश में भीग कर अब बदन वो उसका नशे में मुझको डुबो रहा है. यहाँ वहाँ इन फिसलते हाथों की जुम्बिशों में, यहाँ वहाँ इन फिसलते हाथों की जुम्बिशों में, जिस्म मेरा फिर से तश्कील पा रहा है. ये सच है बदन पे मेरे नहीं है शायद लिबास कोई, मगर मैं फिर भी नहीं हूँ उरियां, मगर मैं फिर भी नहीं हूँ उरियां, कि उन निगाहों की सुर्ख चादर से जिस्म मेरा ढका हुआ है, कि वक्त जैसे रुका हुआ है. ये पैरहन की हर एक शिकन में बसी हुई एक थकी सी खुशबू, उलझती जुल्फें, बिखरता दामन, उमड़ती सांसें, मचलती धड़कन, ये सारा मंजर सुलग रहा है कि बुझ रहा है. ये सारा मंजर सुलग रहा है कि बुझ रहा है. और फिर आखिरी बंद, न ऐसी नजरों से मुझको देखो, न ऐसी नजरों से मुझको देखो, न इतने मुबहम सवाल पूछो, मैं खुश हूँ मानो यकीन जानो, अगरचे मैं ये भी जानती हूँ ये खुद को खोने के मरहले हैं, ये खुद को खोने के मरहले हैं. वाह क्या वाह बात है, बहुत बहुत बड़ा. बहुत खूब बहुत शुक्रिया. और ये आप लोग अगर मैं वक्त देख रही हूँ तो हालांकि हम ये साबित करना चाहते थे कि सिर्फ ऐसी शायरी हम सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तस्लीम करते हैं, क्लेम करते हैं अपने इस तरह के तजुर्बों को, और हम उसके अलावा जैसे तमाम as a human being we are participating in politics, we are participating in all intellectual philosophical discourses, and
but we are not ashamed of our sexuality, and we are comfortable, with our emotional vulnerabilities. So there was another poem, but I will just talk about it, but then I will go to some other poet. So I wrote a poem which is ईरान की लड़कियां. तो जो लोग थोड़े पुराने जमाने के हैं, 10 साल पहले की बात है, 2009 की, कि एक बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसमें लड़कियों ने मतलब एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला था ईरान में, ईरान के इलेक्शन के ज़माने में, जिसमें लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, और एक खास तौर पर उस प्रोटेस्ट के में एक लड़की, एक बहुत कम सिन लड़की, निदा सुल्तान, उसकी मौत भी हो गई। और फिर वो जो मूवमेंट था, वो जो एक तरह से तहरीक थी, जो एक बगावत की लहर थी, वो मिडिल ईस्ट के सिद्दीकी दूसरे, भी उस समय थी। हाँ, दूसरे मुल्कों में फैल गई। तो हमने एक नज़्म लिखी थी ईरान, वो हम सुनाना और लेकिन हम पहले जाएंगे कोई एक तो ये कि चूंकि ये, हालांकि हम तो उस कल्चर से बिलोंग करते हैं, we belong to that culture. I think India, Pakistan, South Asia is the only place where not only for music concerts, people go in crowd and gather and listen to poetry all night long. We have this all night mushaira culture. So we should not get tired of poetry, I believe. So we can, even though this is like officially hour and a half, hour 15-minute session, but we can continue if people are interested. But if my own poets on officially who are on the panel, if अगर वो इजाजत दें, तो मैं जो हमारे ऑडियंस हैं, जो ऑडियंस में लोग हैं, उनमें शोरा भी हैं, और हम उनके साथ भी जुड़ जाएं कि अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, अगर कोई है तो वो शेयर करे मुनासिब नहीं तोड़ने के लिए, अगर कोई नहीं है तो फिर हम में से कोई अपनी नज़्म सुना सकता है। तो ये ख्याल कैसा लगता है आपको? So Amit, are you there? So please, type in the chat box. I'm talking to my audience. Yeah, please write in the chat box so that we can give you microphone if you want to recite your own poem. Yeah. Yeah, you. Okay. Okay, we will wait. So meanwhile, let's go back to. Okay. So Devesh Shah wants to recite. So Amit, can we go to him? Yeah, sure, not a problem. Yeah, go ahead, Devesh. Okay, am I audible? Yes. Yes. Okay. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटी सी कविता मैंने जी अपने बचपन में लिखी थी। राइट, मैं प्रोफेशनल पोएट नहीं हूँ, बट आपका फीडबैक सुनूंगा। हाँ, यूजुअल पोएट प्रोफेशनल होते नहीं है, और खासतौर पे आज के ज़माने में तो इरफान सिद्दीकी हमारे यहाँ लखनऊ के शायर थे, उन्होंने लिखा था कि हम उनका एक मिसरा है कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गजल ख्वानी भी करते हैं। जी हाँ, तो ये तो हमारी किस्मत है आजकल, या बदकिस्मती है। सो गो अहेड इरशाद। ठीक है, धन्यवाद। जहर का प्याला पी गया मैं, जी गया मैं, मुख से निकली तक नहीं एक आह, हृदय से टीस उठी, गर्वित हुआ स्वाभिमान, बोला वाह वाह, कड़वाहट के समुद्र में पाई मधु की मधुरता, यमराज तक बोल पड़े ऐसा नहीं हो सकता, किसने किया सृष्टि के नियमों का विनाश, जीवन को गले लगाया मृत्यु का हुआ सर्वनाश, मृत्यु और जहर का साथ, चोली दामन का साथ, तीनों लोकों में कौन सी है वह शक्ति जिसने दी इस जंजाल से मुक्ति, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, मिलावट थी जहर में तेरे प्यार की, अफसोस किसी और के लिए, आश्चर्य फिर भी जी गया मैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देवेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी कविता हमारे साथ बांटने के लिए, शुक्रिया। क्या बहुत अच्छा। अभी तो और हम, मुझे कोई नाम नहीं दिख रहा है, तो रियासत, क्या आप अपनी कोई और एक नज़्म हमारे साथ बिल्कुल हमें सुनाना चाहते हैं? यस, गो अहेड। देखिए, ये भी थोड़ी सी उटपटांग गजल है कि हमको बस हुक्म आया कि पी गए,
हमको बस हुक्म आया कि पी गए, उसका चेहरा भी था दीदनी, पी गए। खामशी भी वाह सुरीली वाह है अपनी मियाँ, हाय हाय। खामशी भी सुरीली है अपनी मियाँ, खा गए गीत और मौसीकी पी गए। वाह और वाह मोजज़े हमसे कुछ ऐसे सरजद हुए, मोजज़े हमसे कुछ ऐसे सरजद हुए, प्यास जैसे बढ़ी तिश्नगी पी गए। वाह, तशनगी पी गए। वाह बहुत आसमां खूब। में आसमां से सितारे चुने खा गए, आसमां से सितारे चुने खा गए, रात में चांद की चांदनी पी गए। वाह, वाह, वाह। और हमको साकी ने दी अब के आबे हयात, हमको साकी ने दी अब के आबे हयात, घोल कर जहर में जिंदगी पी गए। और वक्त को हजम वाह करना तो आसान न था, वक्त को हजम करना तो आसान न था, चंद लम्हों के साथ एक सदी पी गए। और यूं हुआ वाह आखिरश कासाए अक्ल में, यूं हुआ आखिरश कासाए अक्ल में, भर के जामे जुनू फलसफी पी गए। और वाह हम बिछाकर किताबों के दस्तर यहाँ, हम बिछाकर किताबों के दस्तर यहाँ, फलसफे खा गए शायरी पी गए। वाह वाह बहुत खूब बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत तो कोई और अपनी ही एक नज्म मैं एक जरा देख लूं। ठीक है। तो सौम्या अपनी एक और नज्म हमने सुना कि आपने कहा कि आप अंग्रेजी के अलावा भी लिखती हैं। जी मतलब लिखती हूँ, जी कोशिश करती हूँ। उर्दू में गजल नहीं कहती मतलब हैं। अच्छा, अरे तो बड़ी भी गजल हो जाए। अच्छा, ये मैं गजल हुई एक्चुअली है। सोच रही थी कि अंग्रेजी भी गजल सुनाऊं, लेकिन अगर अगर आपको गुजारिश है उर्दू में पढ़ने, मतलब मैं उर्दू में पढ़ूं तो पढ़ सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा आपको जो मतलब जो भी आपका पढ़ने का जी चाहे या जो सुनाने का जी चाहे, लेकिन हम ये भी था कि लोगों को बताना चाहते थे कि आप अंग्रेजी के अलावा भी दूसरी जबानों में लिखती हैं। ठीक है। तो एक गजल है कि बैठे जो लिखने यार को पैगाम रो दिए, बैठे जो लिखने वाह यार को पैगाम रो लिखने दिए। यार को पैगाम रो दिए, आया न जहन में कोई भी नाम रो दिए। वाह किस बेरुखी से तर्क ताल्लुक किया गया, किस बेरुखी से तर्क ताल्लुक किया गया, बाजार ही में हम जो सरेआम रो दिए। वाह वाह वाह। और महफिल में रंजो गम को पिया सबने बारहा, महफिल में रंजो गम को पिया सबने बारहा, नादान एक हम ही थे बेजाम रो दिए। क्या बात। शामों के इंतजार में हंसकर कटाए दिन, शामों के इंतजार में हंसकर कटाए दिन, फिर भी ना आई शाम तो ताशाम रो दिए। और तुम जो असीर ज़ब्त थे क्या फायदा हुआ, वाह वाह वाह। तुम जो असीर ज़ब्त थे क्या फायदा, आखिर में लो हुआ वही अंजाम रो दिए। वाह वाह वाह। और उठा था उस ज़मां में परिंदों का शोर यूं, उठा था उस ज़मां में परिंदों का शोर यूं, सयाद आज सुन के वो कोहराम रो दिए। और आखिरी वाह शेर के खत में उन्हें मिला नहीं अपना कोई निशान, खत में उन्हें मिला नहीं अपना कोई निशान, सो खातिरे सुबूत ही गुमनाम रो दिए। वाह बैठे जो लिखने यार को पैगाम रो दिए, आया न ज़हन में कोई भी नाम रो दिए। वाह बहुत खूब। सो यहाँ Shukriya, let's just see if there is anyone in our audience who wants to. I think there were a couple of people. Yeah. So Umme Amara and Yeah, I think Umme Amara ji wanted to recite. okay, ठीक है.
So अमित उनको दे दीजिए क्योंकि I am having a hard time keeping track of. ठीक है, उम्मे अमारा को. बिल्कुल बिल्कुल, यस, गो अहेड। उमर जी, माइक इज योर्स। आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी जी। इरशाद। I wanted to read a poem of mine, which is called A Game of Dice. In this, I wrote about the feelings of a girl just before she is about to get married. So today was the end of an era. Sorry, too much echo. Entering a new world, which would now become her fort. उमर जी, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, बीच में आपकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। Network problem होगा। This is called A Game of Dice. Today was the end of an era in her life. Soon she was going to be the bride. The house was filled with excited chatter. In her mind, everything was helter-skelter. The coming hours would reveal her fate. She was going to be a queen or a hapless maid. She would be entering a new world, which would now become her fort. It would become her duty to serve his entire family. He wouldn't even have to care about respecting hers. Cooking n number of dishes would be the morning norm. At the table, he would brag about how she spoiled the curry's charm. Cooking, vacuuming, cleaning day after day. She gets to hear in the evening, what do you do the entire day? Will her life be this harsh or a rosy one? Due credit for her work would she be given? Will she get a peck on her cheek when he departs? Would her smile melt his tensions when he returns? Would he get her a glass of water if she choked on her foot? Would he lay the clean wet clothes to dry on the roof? Would he remind her to take the medicine on time? Would he caress her face, absorbing her tears when she cried? Marriage is a game of dice which could reverse your entire life. You may be an IAS or a house help. Nature of the spouse decides the quality of your life. With a love or arranged, it doesn't matter much. A marriage can only be a hit if the terms are cordial. She was back into this world when her sister pinched her arm. Marriage is a game of fate, she told her, lost in her old gown. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, Umme Amara. And now we will take Rashmi Srivastav. Amit, can we take her? Yes, yeah, go ahead, yeah. Rashmi? Yes. Yeah. Can you? Thank you for मतलब इतने महान हस्तियों के बीच में आपने हमें मौका दिया। नहीं, लेकिन ये तो हम तो समन्वय स्पेस, हमारा जो नाम है वो इसीलिए है क्योंकि इस स्पेस में सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है, और ये हमारी पॉलिसी एक तरह से स्ट्रैटेजी है कि ये हमारा आर्ट को सर्व करने का तरीका है। तो गो अहेड रश्मि। थैंक यू। मैं बहुत छोटी सी अपनी कविता पेश करने जा रही हूँ, और मैं जैसा मैं रेगुलर राइटर नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शुरू करने जा रही हूँ। है भीड़ घेरे मुझको, है भीड़ घेरे मुझको, हूँ फिर भी मैं अकेली। है भीड़ घेरे मुझको, हूँ फिर भी मैं अकेली। ये बाहर का कोलाहल और मेरे भीतर का सन्नाटा, न जाने मुझे किस भंवर में फंसाए रखता है। न निकल ही पाती हूँ, न डूब ही पाती हूँ, न निकल ही पाती हूँ, न डूब ही पाती हूँ, बस इसी में उलझ कर रह जाती हूँ। नहीं है कोई ऐसा, नहीं है कोई ऐसा जो खींच ले मुझे इस सन्नाटे से। नहीं है कोई ऐसा जो खींच ले मुझे इस सन्नाटे से, और तोड़ दे मेरे भीतर की खामोशी, और तोड़ दे मेरे भीतर की खामोशी, और लौटा दे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट।
लौटा दे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, कोई तो आए किसी की तो हो आहट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू रश्मि, बहुत सुंदर कविता। एक छोटी सी और सुना दूं? सुना दो। ये जो मैं रूबरू खुश दिखती हूँ, ये जो मैं रूबरू खुश दिखती हूँ, जहन की तह में कई गुबार रखती हूँ। ये जो मंजर खुशनुमा सा लगता है, ये जो मंजर खुशनुमा सा लगता है, न जाने क्यों कुछ अजनबी सा लगता है। हूँ समेटे न जाने कितने दर्द दुनिया के, हूँ समेटे न जाने कितने दर्द दुनिया के, पर मेरा हौसला मेरे चेहरे की चमक बरकरार रखता है। थैंक यू रश्मि। सो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, क्योंकि गजल कई लोगों ने गजलें सुनाई, इवन जब सौम्या ने गजल सुनाई अपनी, तो मेरा जी चाहा कि एक गजल हम अपनी आप लोगों की नजर करें। तो ये कल्ट पोएट्री की थीम के साथ जाती भी है, क्योंकि गजल में जो कंटेम्प्रेरी हमारे पोएट्स थे, उनमें यानी जब हम कॉलेज में थे और लखनऊ में हम थे, तो इरफान सिद्दीकी के साथ शेरी नशिस्तों में पढ़ने का हमें एक तरह से हमारी वो है खुशनसीबी है कि हमें शर्फ हासिल रहा है। तो जब इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ, तो हम ज्यादातर तो हम नज़में लिख रहे थे, लेकिन गजलें भी हम लिखते हैं। तो एक गजल हमने उन्हीं की बहर में लिखी, और उसका रदीफ जो है वो है खामोश। और ये इरफान सिद्दीकी नंबर जो शबकून ने छापा था उसमें शामिल भी थी। तो इरफान सिद्दीकी की नजर एक गजल यहाँ आप लोगों के लिए। तेरे आशिक है तहे तेगे जफा भी खामोश, तेरे आशिक है तहे तेगे जफा भी, एक मिनट रुक जाइए। तेरे आशिक है तहे तेगे जफा भी खामोश, कहीं हो जाए ना ये नक्श वफा भी खामोश। तेरे आशिक है तहे तेगे जफा भी खामोश, कहीं हो जाए ना ये नक्श वफा भी खामोश। कौन खामोश हुआ है कि हुई जाती है, कौन खामोश हुआ है कि हुई जाती है, अरसाए शेर व सुखन तेरी फजा भी खामोश। रंग पैराहन जाना का उड़ा जाता है, रंग पैराहन जाना का उड़ा जाता है, और हुई जाती है दिलबर की अदा भी खामोश। गुल हुई एक के बाद एक चरागों की लवें। तो जाहिर है कि ये हम गजल क्या है, और आप कह सकते हैं कि वो एक मेरी गजल की शक्ल में एक मरसिया है इरफान सिद्दीकी के लिए। सो गुल हुई जाती हैं, गुल हुई एक के बाद एक चरागों की लवें, धीरे धीरे हुई मुतरिब की सदा भी खामोश। मेरी शोरीदा सरी मुझको कहाँ लाई है। तो ये शेर जो है वो जरा मतलब जाहिर हमने तो बिल्कुल दूसरे माहौल में या दूसरे जज्बे में लिखा था, लेकिन अभी जो कोविड चल रहा है, तो जब भी मैं अभी कसम ये शेर पढ़ते पढ़ते हमें ख्याल आया कि ये जरा आजकल जो फजा है उसको भी डिस्क्राइब करता है। मेरी शोरीदा सरी मुझको कहाँ लाई है, आसमां सुर्ख जमी सख्त हवा भी खामोश। जान को उजड़ना था उजड़ा लेकिन। तो अब हम लखनऊ से हमारा ताल्लुक है, हम मुहर्रम के शहर से हैं, तो बहुत सारी हमारे पास हमने कुछ गजलें नज़में जो हैं वो करबला की अलामतें हैं उनमें, और ख़ास तौर पे गज़ल के मामले में इरफान सिद्दीकी जो हैं उनका काफ़ी असर रहा है, और उन्होंने करबला की जो अलामतें हैं उनको बहुत इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। तो कूफे जां को उजड़ना था सूजड़ा लेकिन, गम तो ये है कि हुआ शोरी अज़ा भी खामोश। नामाए इश्क पढ़े कौन सरे शाम ज़वाल,
सो ये जो नाम है इश्क की तरकीब है, असल में वो इरफान सिद्दीकी की गजलों का एक मजमुआ है जो हम उसको लिए घूमते थे कॉलेज के ज़माने में, और उसका नाम है इश्कनामा। तो ये रिफर करता है इश्कनामा को ना, और इश्कनामा या नामा इश्क का मतलब लव लेटर भी है, जो लोग उर्दू वाले नहीं हैं। नामे इश्क पढ़े कौन सरे शाम जवाल, वो भी खामोश हुआ, वो भी खामोश हुआ, उसकी नवा भी खामोश, तेरे आशिक है तहे तेग जफा भी खामोश, वाह कहीं हो जाए न ये नक्श वफा भी खामोश। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अगर हमें कोई ऐसी फरमाइश नजर नहीं आ रही है, क्या कोई और हमारे ग्रुप से देख सकता है कि कोई फरमाइश अगर छूट गई है भाई तो माफ कीजिए, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कोई 12:30, नहीं हाँ 12:30 हमारे यहाँ बजे, आपके यहाँ 10 बजे। घंटा हमारी जो टेक्नोलॉजी टीम है उनको भी हमें फुर्सत देनी चाहिए। तो इस इरफान सिद्दीकी, हेलो, तो बहुत शुक्रिया आप जो शोरा हजरात आए और जो लोग उनको सुनने के लिए आए, क्योंकि जैसा कि हमने समन्वय के व्हेन आई टॉक्ड अबाउट what our approach is to serve art, serve literature, and I emphasize the importance of paying attention to the audience as well, and creating active audience communities as well, informing audience about what is being written, what is being done, what goes into art. We actually this week, this is our last event of this week, and we had 2 musical events, we had 2 talks, and we had 1 event on visual art or fine arts, and we had 3 artists who came and talked about their paintings, and the topic was inside an artist studio, what goes into art. So so in a way, by focusing on this topic, cult poetry, we tried to bring attention to 2 things. We brought attention to this idea that a poet does not write in vacuum. A lot of other voices that exist before a poet starts writing, these voices always have some sort of direct, indirect influence on the poet's mind, the poet's creative process, and so on. And it is important to talk about these things so that we understand the value for it, so that we understand that this is actually a human, natural, process. It's not just about entertainment. It's not just about, best poetry, focusing on best poetry because we are all, we recited our poems with master poets, and with humility, but that's how it is supposed to be. And we invited our audience to come and recite their poems with us. So we already connected kind of 3 different communities of poets through this event. So we will continue our efforts to doing these kinds of efforts and reach out to us. Our website is samanvay.space, and you write to me directly if you have any ideas about events, if you want to connect at any level, whether it's organizing events, themes, ideas, and we will continue this journey. So thank you all, and welcome to Samanvay. Thank you all. Good night. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Yeah, good night. We can end the meeting here. Amit, thank you.